इतना ही नहीं, I can talk about Noah's Ark. I can talk about events after events after events that now science is proving that is already mentioned in the Bible. नोआ की आग एक के बाद एक इवेंट जो हुए उसका मैं सबूत जो नासा निकाल रहा है वो बता सकता हूँ. Okay. Also, बाइबल पहले से बताती है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो नर और नारी बनाया. The Bible tells us from the beginning when God made man, He made them man and woman. That means, and then God said, "Be fruitful and multiply." और फिर परमेश्वर ने कहा फलवंत हो पृथ्वी पे भर जाओ. Okay, so a male needs a female to procreate and to grow. लाइफ में सीधे रास्ते कम ही लिए मैं. I always took the curve. इंजीनियरिंग करने के बाद हीरो बनने To produce more kids. एक पुरुष ना सात समय में पीछे जा करके चेक कर सकता है कि कब कब ग्रहण हुआ है इतिहास में. कौन? कोई मीडिया टीवी नहीं जो बोले परी उड़ के गई शाम को. Not India TV or some TV. NASA. NASA. I want to show you a video of NASA. Can you show the video, please? Did you know that NASA has done research on the crucifixion of Jesus Christ? And what they found aligns perfectly with what the Bible tells us. The Bible says in Matthew 27:45, "From the 6th hour until the 9th hour, darkness came over all the land." This is referring to the time of Jesus' crucifixion. Now, let's dive into some details. Scholars generally agree that Jesus was crucified on April 3rd, 33 AD. Here's where it gets mind-blowing. According to data from NASA, there was a partial eclipse in Jerusalem on that exact day. The duration of the eclipse was about 2 hours and 50 minutes, which matches the timeline described in the Bible. So, if you ever needed more proof that the Bible is true, here it is. Modern science backing up ancient scripture. You can go to nasa.gov and find the details. NASA.gov पे जाके आप खुद डिटेल ढूंढ सकते हो. And it's not just that. इतना ही नहीं, I can talk about Noah's Ark. I can talk about events after events after events that now science is proving that is already mentioned in the Bible. नोआ की आग एक के बाद एक इवेंट जो हुए उसका मैं सबूत जो नासा निकाल रहा है वो बता सकता हूँ. Okay. Also, बाइबल पहले से बताती है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो नर और नारी बनाया. The Bible tells us from the beginning when God made man, He made them man and woman. That means, and then God said, "Be fruitful and multiply." और फिर परमेश्वर ने कहा फलवंत हो पृथ्वी पे भर जाओ. Okay, so a male needs a female to procreate and to grow, to produce more kids. एक पुरुष को एक महिला की आवश्यकता है एक और बच्चों को जन्म देने के लिए बच्चों को. But if evolution is true, लेकिन अगर एवोल्यूशन सच्चा है, do you know there are many scientists who don't believe in evolution? आप जानते हैं बहुत से साइंटिस्ट हैं जो एवोल्यूशन को नहीं मानते. There is a big problem with evolution एवोल्यूशन के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है that scientists have discovered, and this is what I want to show you. Can you जो put that? साइंटिस्ट ने पता लगा, मैं आपको दिखाना The चाहता problem, हूँ. वो समस्या, okay, almost all forms of complex life have both male and female: horses, dogs, humans, fish, moths, monkeys, elephants, birds, etc. The male needs the female to reproduce, and the female needs the male. One cannot carry on life without the other. But if evolution were true, then here's the question: which came first, male or female? लगभग सभी जटिल जीवों में नर और मादा दोनों होते हैं. घोड़े, कुत्ते, मनुष्य, मछलियां, बंदर, हाथी, पक्षी आदि. नर को संतान उत्पन्न करने के लिए मादा की आवश्यकता होती है और मादा को संतान उत्पन्न करने के लिए नर की आवश्यकता होती है. एक के बिना दूसरा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता. लेकिन यदि विकासवाद एवोल्यूशन सही होता तो प्रश्न उठता है कि पहले कौन आया, नर या मादा? If the male of the species came into being before a female, how did he reproduce?
And if the female came first, how did she reproduce without a male? And more importantly, how is it possible that both male and female came into existence randomly, yet their reproductive system are so complex, coordinated and complementary? The answer is simple. There is a designer. God made them male and female by intelligent, purposeful design. यदि किसी जाति ने नर पहले अस्तित्व में आया तो उसने बिना मादा के कैसे संतान उत्पन्न की, और यदि मादा पहले आई तो उसने बिना नर के संतान कैसे उत्पन्न की। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कैसे संभव है कि नर और मादा दोनों अचानक उत्पन्न हो जाएं और फिर भी उनके जनतंत्र इतने जटिल, सटीक और एक दूसरे के पूरक हो। उत्तर स्पष्ट है, एक बुद्धिमान सृष्टिकर्ता है। परमेश्वर ने उन्हें उद्देश्य के साथ नर और नारी बनाया है। You're not a result of an accident. आप एक घटना का परिणाम नहीं हो। You were intelligent, designed by a creator. आप बुद्धिमानी के द्वारा सृष्टि किए गए हो, एक रचनाकार के द्वारा। एक बार एक साइंटिस्ट, दो दोस्त थे, दोनों साइंटिस्ट थे, एक एवोल्यूशन को मानता था, दूसरा एवोल्यूशन को नहीं मानता था। Two scientist friends, one believed in evolution, the other did not. तो उसने केक, जो मानता था कि एवोल्यूशन नहीं है, परमेश्वर पे वो मानता था, उसने केक बनाया। The one who believed in God, he made a cake, और baked a टेबल cake, पे रखा। kept it on the table. और उसका दोस्त आया, उसने केक खाया, कह रहा बहुत बढ़िया केक है, किसने बनाया है? And his friend came and said, "It's a very good cake. Who made it?" उसने कहा नहीं, किसी ने नहीं बनाया। He said, "No one made it." कह रहा मैंने फ्रिज में बेकिंग पाउडर, फ्लावर, चीनी, सिरप रखा था, एक एक्सप्लोजन हुआ, केक बन गया। He said, "I had kept baking powder, soda, and all these things in the fridge, and there was an explosion, and the cake came out." कह रहा क्या बकवास कर रहा He है? said, "What nonsense are you saying?" ऐसा कैसे हो सकता है कि एक धमाका हुआ और बिल्कुल सही मात्रा में चीनी और सही मात्रा में मैदा और सही मात्रा में बेकिंग पाउडर? He said, "How is it possible that an explosion happened and in the right measure you put sugar in this right measure?" और उसके बाद इतने अच्छे अलाइनमेंट में टेबल के ऊपर आ गया। And it got such a good shape and an alignment on the table. कह रहा मजाक क्यों कर रहा है? He said, "Why are you joking?" उसने कहा मजाक तो तू कर रहा है जब तू कह रहा है कि इतना कॉम्प्लेक्स ह्यूमन डिजाइन एक धमाके के द्वारा आ गया। He said, "You are joking when you are saying such a complex human design came through an explosion." The more you study science carefully, the more you will believe that there is an intelligent designer who created you with a purpose. जितना ज्यादा आप साइंस पढ़ोगे उतना ज्यादा जान लोगे कि एक बुद्धिमान सृष्टि करता है जिसने एक मकसद के साथ आपको बनाया है। Okay? Human brain is a miracle how it functions. मनुष्य का जो दिमाग है वो एक चमत्कार है कैसे काम करता है। Human eyes are a miracle. If you read, मनुष्य आप बेस्ट से बेस्ट कैमरा ले लो, आज जल्दी से घुमाओ, उसको टाइम लगता है, ब्लरी हो जाता है, पहले थोड़ी देर में फोकस आता है। अरे आप आंखें जहां घुमाओ परफेक्ट दिखता है। मनुष्य की आंखें एक चमत्कार है। Best to best cameras take time focusing and adjusting, but when you look around, you are able to focus instantly. See, the problem with science is science can only tell you how, science cannot tell you why. साइंस की दिक्कत यह है कि वो आपको कैसे बता सकता है, क्यों नहीं बता सकता। साइंस ये तो बता सकता है कि केक के अंदर कितना प्रतिशत प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कितना बेकिंग सोडा है, मगर साइंस ये नहीं बता सकता कि किसने वो केक बना के वहां रखा। उसके लिए आपको परमेश्वर का वचन चाहिए। Science can tell you how much measure of ingredients are in a cake, but who made the cake? For that you need the Bible, the Word of God. हालेलुया। और एक और परमेश्वर, एक साइंटिस्ट थे, वो एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं। Another scientist, a mathematician. एंड उन्होंने जो सारी भविष्यवाणियां जो यीशु मसीह के लिए कही गई, And all the prophecies that were done for Jesus, जब उन्होंने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली मैथमेटिक्स से कि कैसे, और हजारों साल पहले, डू यू नो जीसस यूज्ड टू से दैट all this was written about me.
When he took out the probability of all that was prophesied for him over thousands of years, यीशु ने बोला ये सब मेरे लिए भविष्यवाणी की गई थी. Can you put Peter W. Stoner? Okay. तो उन्होंने एक समझाने के लिए आपको कि आप समझ सको Just to help कि you तुक्का understand नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने सारी prophecies को पूरा किया. that this is not a guess that Jesus fulfilled all the prophecies. When you study probability in mathematics, जब आप probability को पढ़ेंगे mathematics में, देखो उन्होंने क्या किया. He is a mathematician, astronomer. He applies the science of probability to access the likelihood of specific biblical prophecies being fulfilled. He meticulously calculates the odds of various Old Testament. So अलग-अलग जो प्रभु यीशु, सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ, अलग-अलग जो भविष्यवाणी की गई उनको समझाने के लिए उन्होंने कहा अगर टेक्सास में, ओके, टेक्सास का एरिया कितना हुआ सोच लो आप. पूरे टेक्सास में अगर डॉलर के जो सिक्के होते हैं अगर वो 2 फीट तक उठा के पूरा टेक्सास को भर दिया जाए और उसमें से केवल एक सिक्के पे एक मार्क लगाया जाए और उन पूरे टेक्सास में जो सिक्के हैं उनमें से उनको छुपा दिया जाए और एक बंदे को आंख में पट्टी बांध दी जाए और जो सिक्का वो चुने वो निकल जाए तो तब वो प्रोफेसी हो सकती है. That's the probability. he said the probability is such if you fill the entire state of Texas with coins over to the knees and you put blindfold on a guy and put a mark on one coin and he finds it, that's the probability of Jesus being The born. probability is 1 in 10 to the power 17th. 17 गुना मल्टीप्लाई होने के बाद एक बार ही उसमें हो सकता है, ये संभवता सरल है. भाषा में बताऊं तो इसको फेक करना इम्पॉसिबल है. It is impossible to fake this. यानी प्रभु यीशु मसीह सच में वो है जो वचन कहता है वो है. It means really Jesus is who the word says he is. ओके, मैंने अभी तक वचन शुरू नहीं किया. I haven't started the word yet. I love to teach the word, but I'm just talking to some skeptics, trying to encourage them. मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ वो लोग जो संदेह करते हैं उस पे. And if you are a real skeptic, अगर सच में आप ऐसे लोग हो जो ढूंढते हो, खोजी लोग हो, then really search. तो सच में खोजो. Don't come to a conclusion because there is a loud noise outside that is screaming lies. निष्कर्ष पे इसलिए मत पहुंचो कि बाहर एक बहुत हल्ला मचाने वाली आवाज है जो झूठ पे झूठ चिल्ला रही है. झूठ कितना भी चिल्ला ले झूठ ही रहता है. No matter how much lie screams, it remains a lie. ओके, और सत्य है तो टेस्ट करो तो पता लग जाएगा. And if it is the truth, test it अगर out. कोई भी स्केप्टिक यहाँ पे है, आज घर जाना और वो प्रार्थना करना जो साधु सुंदर सिंह जी ने करी. If there is any skeptic here today, when you go home, pray the prayer that Sadhu Sundar Singh prayed. ओके, तब तो कोई नहीं आपको झुठला सकता ना. Then no one can deny it, right? यही प्रार्थना मैंने करी थी. That is the prayer that I did. बोला अगर है कोई सच्चा, Say, if there is anyone who is real, अपने आप को मेरे जीवन में प्रकट कर. show yourself to me in my life. मैं उस परमेश्वर के साथ साक्षात्कार चाहता हूं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया. Say, I want to encounter the God who made the heavens and the earth. ओके, उसके बाद उसका काम है. After that, it is his job. उसके बाद उसका काम है. It's his job then. मैं वचन में जाऊंगा पर उससे पहले एक अपना साक्षात्कार बताता हूं. I'll go into the word, but I'll tell you an 19 encounter. साल से जब मैं बहुत छोटा था, Since 19 years, when I हमारे was घर young, में एक विनोद पंडित जी हैं, वो आते थे. Vinod Pandit ji used to come to our house. बहुत प्यारे बढ़िया बंदे हैं. Very loving man, very good man. तो मैं उनसे सवाल पूछा करता था. I used to ask him questions. मैं परमेश्वर को जानना, मैं कैसे दिखते हैं, कैसे उनकी आवाज़ I है. want to know God. How can I know him? What does it sound like? तो उन्होंने मुझे कई एक्सरसाइजेस सिखाई So he taught me many exercises. कि आप ध्यान ऐसे लगाओ. Oh, you should meditate like this. फिर उसके बाद हमारे पड़ोस में एक पटवाल अंकल करके रहते हैं. After that, there's a neighbor Patwala. उन्होंने एक गुरुजी को धारण किया था, तो मैं उनके पास बैठता था, उनसे सीखता था. He used to go to a Guruji, so I would go to him and learn. फिर 10th के बाद
वहाँ स्कूल और बड़े नहीं थे तो पापा हमें देहरादून ले आए। After 10th, my father brought me to Dehradun because they were not senior तो secondary भूख school. जो अंदर थी ना, The hunger that was in me. स्कूटर निकाला, घर में बोल रहा जा रहा हूँ स्कूल, मगर गया ऋषिकेश। I would take out the scooter, tell my family I'm going to school, but I would go to Rishikesh क्योंकि एक अंदर भूख थी। because there was a मैं hunger. जानना चाहता था मेरा बनाने वाला कौन है। I wanted to know who is the one who created me. और एक जगह से दूसरी जगह गया और बहुत ज्ञान तो मिला मगर भूख नहीं मिटी। And I went from one place to another. I got a lot of knowledge, but my hunger was still there. और उसके बाद जब मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, Then I was selected for engineering. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में परस्यू कर रहा था, I was pursuing my engineering then. तब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई, मुझे दौरे आने लगे। I got very unwell. I started to have convulsions and fits. इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई कि कॉलेज ने मम्मी पापा को बोला इसको ले जाओ, तो I got मुझे so- देहरादून ले आए। I got so critical that the college called my parents and they told them to bring me back. मुझे चीज़ें दिख रही थी, I was seeing things. मेरे साथ चीज़ें हो रही थी। There were things happening to me. और उस समय मेरा एक पंजाबी दोस्त भरत गुजराल मेरे घर में आया। And at that time, a friend of mine, a Punjabi friend of mine, Bharat Gujral, came to my house. और उसने कहा And he said, मेरी लाइफ बदल गई। my life has changed. कह रहा मैंने यीशु मसीह को जान लिया। Said, I have known the Lord Jesus. मैंने उसको कहा भाई कितने पैसे मिले तेरे को, And I asked him, how much money did you get? जो आज हम सबको लगता है। Which we all think today. और उसने मुझे कहा कि मैं, क्योंकि उनकी केमिस्ट शॉप्स थी, फार्मेसी की शॉप्स थी, They had pharmacy shops. उसने chemist मुझे shops. कहा अंकित तू जानता है हमें पैसे की कोई कमी नहीं, He said, we have no dearth of money. पर मैंने सच में उद्धार को पाया, मैंने यीशु मसीह को पाया है। But I have received salvation. I have found Jesus. और उसने कहा मैं तुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने ले चलूंगा जो ड्रग एडिक्ट था, एक पास्टर का बेटा था, और जब मर रहा था तो आखिरी समय में प्रभु यीशु मसीह उसके कमरे में आ गए और उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा और उनको सुना। He said, I'll take you to meet a man who was a pastor's son and he was a drug addict, and on his deathbed when he was about to die, Jesus walked into his room. और जब मैंने वो सुना When I heard that, तो अब तो ये नहीं था कि मुझे बस ये था कि मैं पहली बार एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं जो कह रहा है उसने साक्षात परमेश्वर को देखा है। now for me, the greatest thing was I'm going to meet someone who is saying they have seen God with their own eyes. और मैं गया, I went, वो जो यंग व्यक्ति थे the young man, वो मेरे पास्टर बने बाद में, he became my pastor later on. और उन्होंने मुझे बताया परमेश्वर के बारे में, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इट वाज लाइक, And he told me about God and I didn't understand anything. Everything went above me. मगर उन्होंने बस एक बात कही, But he said one thing. डू यू वांट अ चेंज इन योर लाइफ? क्या तुम अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो? और उस टाइम अगर आप मेरे मम्मी पापा से पूछे, मुझे हर रोज दौरे आने लग गए थे। कई बारी मैं हॉस्पिटल में एडमिट होता था, जब होश आता था तो मेरे हाथ में ड्रिप लगी है। And at that time, every day I would have convulsions and fits. Many times when I would be conscious, I would be in the hospital with drips in my arms. जब यहाँ पे गवाहियाँ होती हैं ना, लोग बोलते हैं हम 40 साल से दुष्ट आत्माओं में ग्रसित थे, मुझे पता है वो क्या होता है। When there are testimonies here and people say we were possessed by demons for 40 years, I know what that कई feels बार like. कोई उन लोगों को नहीं समझ सकता। Nobody can understand those people. कई बार लोगों को लगेगा ये एक्टिंग कर रहे हैं। People will think they are acting. And I remember he said one thing to me. He said, मुझे याद है उन्होंने एक बात कही मुझसे, would you open your heart to receive Jesus? क्या तुम अपने दिल को खोलोगे प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए? अब सोचो 19 साल, Now imagine 19 years. सुबह 4 बजे उठता था मैं, गायत्री मंत्र जपता था। कई Every बार मेरे morning- मम्मी पापा यहाँ हैं, पूछ सकते हो। Every morning at 4 a.m. I would wake up and chant mantras. My parents are here, you can ask them. और अब मैंने उस नाम को, एक नाम को पुकारा 30 सेकंड के लिए, And now I call out to a name for 30 seconds. और वो दिन है और आज का दिन है, मेरी जिंदगी बदल गई। And that day and today, my life is changed.
उसका वचन कहता है जो कोई उसके नाम मात्र को पुकार लेगा वो बचाया जाएगा. His word says, he who calls out to the name of the Lord shall be saved. Amen. और मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि I love the word of God. Why am I telling you that कि मुझे परमेश्वर के वचन से प्यार है? मेरा असली धन मेरी गाड़ी नहीं, मेरा घर नहीं, उसका वचन है. My real treasure is not my car or क्योंकि my अगर house, वचन but आपके his पास word. है ना, If you have his word, आपके पास सब कुछ है. you have everything. और मैं एक छोटे से वो घर था और जो जवान लड़का मैंने बताया उनकी मम्मी को, वो मेरे पास्टर हैं, और उनकी मम्मी को ब्लड कैंसर डॉक्टर ने बोल दिया था. And that young man that I told you about was my pastor. Doctors had declared blood cancer for his mother. हिंदू परिवार से वो थे They were from a Hindu family. और हॉस्पिटल कोई उनको एडमिट नहीं कर रहा था. And no hospital was taking them. Any skeptic want to meet, I'll take you to meet that family. कोई शक करता है जो मिलना चाहता है मिलवा दूंगा उस परिवार से. डॉक्टर ने कुछ महीने दिए Doctors had given them a few months. और एक हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट किया, फिर बाद में उनको. They finally got और कुछ admitted. लोग आए, जैसे यहाँ से भी टीम्स हमारी जाती हैं हॉस्पिटल में प्रे करने. कुछ टीम आई और टीम ने कहा हम प्रार्थना करते हैं आपकी वाइफ के लिए. हाँ भाई कर दो, अब क्या है, सभी कर रहे हैं, तुम भी करो कुछ. And some people came to the hospital, like people from this church also go to hospitals to pray. They said we'll pray. They said yeah, pray. Everybody's praying. You also pray. और प्रे करके चले गए. They prayed and left. रात को At night, उन आंटी को एक ड्रीम आया. That aunty उन्होंने saw a ड्रीम में dream. देखा कि एक ब्लू कलर की रोशनी उनके ऊपर शरीर में पड़ी she saw a blue light came upon her. और उनके ऊपर कई जंगली जानवर टाइप के थे और वो भाग गए. And there were That was many, the dream that she saw. there were many wild animals on her and they ran away. That उन्होंने ये देखा सपने में. और सुबह उठी, उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि In मुझे the अच्छा morning, लग रहा है, in the morning she woke up and said I feel better. मुझे लग रहा है मैं ठीक हो गई. I feel like I'm healed. तो उनको लगा, समझ रहे ना, मरने के टाइम में He a person can talk things. thought because she's about to die. But then the doctor started to notice her appetite increased. फिर डॉक्टर ने देखा उनकी भूख बढ़ गई है. Everything is becoming better. सब कुछ बेटर हो रहा है. So they took her bone marrow test. तो उन्होंने उनकी बोन मैरो का टेस्ट किया. और जब वो किया तो पता चला कोई कैंसर नहीं है और बॉडी ने दोबारा ब्लड बनाना शुरू कर दिया. When they did that, they found out there's no cancer in her body. The body started to make blood again. और आज शायद उस बात को 30 साल से ऊपर है, वो आंटी आज भी जीवित है. And it's been more than 30 years that auntie is still alive today. और उन्होंने और उनके हस्बैंड ने कहा ये क्या हो गया. And their husband, she and her husband, ये they thought कौन what लोग happened. थे, कुछ पैसा नहीं लिया, कुछ They said- नहीं लिया, they said, फ्री "Who are में these प्रार्थना people?" करी और चले गए. They said, who are these people? They didn't charge us any money. They prayed for free and went away. आप हर संडे यहाँ पे देखते हो कितने लोग आते हैं. You see every लाखों Sunday. रुपए हॉस्पिटल में तांत्रिकों में लगा दिए, यहाँ पे फ्री में चंगे होके जाते हैं. You see every Sunday so many people come. They had spent lakhs of rupees for hospitals and witch doctors. They come here every Sunday for free. They are healed. Amen. क्योंकि चंगाई कभी बेची नहीं जा सकती. Because healing can never be sold. क्योंकि कोई इंसान चंगा नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है. Because no man can heal. It is the Lord Jesus who can heal. ओके मैं एक मच्छर को भी चंगा नहीं कर सकता. I can't even heal a mosquito. मगर वो प्रभु हमारे अंदर है जो चंगा करता है. But that Lord lives inside of us. The उसके one who बिना heals. हम कुछ नहीं कर सकते. Without Him we can do nothing. जो हम आपको यहाँ पे वचन सिखाते हैं, घोषणा करो. जब हमारे बच्चों को फीवर आता है तो हम भी वही करते हैं जो आपको कहते हैं करने के लिए. The word that we teach you from here, when we teach you to declare, is what we also do when our children have fever, when our children are sick. We declare over them. Amen. और फिर हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया, वो टीचर थे, उन्होंने डिसाइड किया जिस यीशु ने हमें चंगा किया, मेरी बीवी को चंगा किया, हम जिंदगी भर अब उसकी सेवा करेंगे. And that husband wife who were teachers, they decided that Jesus who has healed us,
We will serve him all the days of our life. आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा भाई क्या हो गया, भीड़ की भीड़ क्यों यीशु के पीछे जा रही है? Today अरे people- इसलिए जा रही है क्योंकि वो जिंदगियों को बदलने वाला परमेश्वर है। Today people don't understand why are multitudes going to Jesus. It's because he is the God who changes lives. समझ नहीं आएगा तब तक जब तक खुद चखोगे नहीं। You will not understand till you taste him for yourself. हाँ? A man with the evidence is never at the mercy of man with theory. जो व्यक्ति सबूत लेकर बैठा हुआ है वो मोहताज नहीं है उस आदमी का जो ज्ञान लेकर बैठा है। कोई मुझे बोलता है हाँ आपको ना हेलुसिनेशन हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं कहूँ हाँ चल साइड हो जा। If someone will tell me you had हेलुसिनेशन कैंसर की रिपोर्ट भी बदल देता है क्या? if someone will tell me you had hallucination, nothing like this happens, I'll ask them हर get aside. संडे आप यहाँ पे देखते हो and hear this, सुनिए, we are making a book of undeniable miracles that have happened here with the medical documented medical report. हम वो किताब बना रहे हैं जो नकारे ना जाने वाले चमत्कार प्रभु ने यहाँ पर किए हैं, उन लाइलाज बीमारियों को चंगा किया है। कई लोग कहते हैं अरे ये क्या ये बकवास कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है। अरे तो क्यों मानते हो परमेश्वर को? अगर वो कुछ नहीं कर सकता तो क्यों मान रहे हो फिर उसे? किस बात का परमेश्वर है अगर उसके पास सामर्थ नहीं है तुम्हें चंगा करने की? तो Some people say, oh, it doesn't happen like this. Why? Then I would say, why do you believe in God if He cannot do things, if He cannot heal? think about that. सोच के देखो। The one who spoke and billions of galaxies were created and trillions of stars were created, if he cannot heal you, वो जिसने then what's बोला, the point of worshipping such a God? वो जिसने बोला और सृष्टि हो गई, सैकड़ों करोड़ों सितारे बन गए, अगर वो आपको चंगा नहीं कर सकता तो उसकी आराधना करने का क्या फायदा है? We serve a God that is alive. हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो जीवित है। मैं पापा मम्मी से भी यही बात बोलता रहा। मैं कहता रहा मैं 19 साल मैंने ज्ञान बहुत देखा, I would tell my mom that the same thing. I've seen a lot of knowledge. मगर जब मसीह में आया When I came to Jesus, तब अंधों की आंखों को खुलता हुआ देखा, बहरों के कानों को खुलते हुए देखा, कैंसर्स को चंगे हुए देखा, डिप्रेशन में जो लोग हैं उनको चंगे होते हुए देखा, परिवारों को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा। अरे केवल ज्ञान नहीं है भैया, He is the living God. I saw blind eyes open, deaf ears open, cancers healed, so many diseases healed. It's not knowledge, He is the real deal. Hallelujah. अभी वर्ड शुरू नहीं हुआ है। The word has not started yet. And I taught you from the observer's effect in quantum physics how what happens here is science. मैंने आपको सिखाया था ऑब्जर्वर्स इफेक्ट से, क्वांटम फिजिक्स से जो यहाँ होता है वो विज्ञान है। It's not superstition. ये सुपरस्टिशन नहीं है। Words are energy and energy affects matter. That's what theory of relativity is. शब्द जो है वो एनर्जी है और एनर्जी जो है वो ठोस पदार्थों को बदल देती है, ये बता दिया। All the matter that you see is energy. जो कुछ मैटर आप देखते हो, ठोस देखते हो, वो एनर्जी से बना है। Okay? All right. Let's go to the word. आइए वचन में चलते हैं। वचन में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा। See, I love to study about quantum physics. Before we go into the word, I'll tell you in simple words. मुझे प्यार है क्वांटम फिजिक्स पढ़ने से। And quantum physics is the study of subatomic particles like proton, electrons, neutrons. क्वांटम फिजिक्स जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी है। और जब क्वांटम फिजिक्स साइंटिस्ट पढ़ने लगे तो उनका दिमाग घूम गया। When scientists began to study quantum physics, they got lost. Because the quantum field acts very differently. क्योंकि जो क्वांटम फील्ड है वो बहुत ही अलग प्रक्रिया करती है। मैंने आपको पिछले कितने लोगों को याद है ऑब्जर्वर्स इफेक्ट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? How many people remember observer's effect? कि जब आप
अंदर घुस जाएंगे और आप इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को देखेंगे, जब आप उनको ऑब्जर्व करते हैं तो वो फॉर्म ले लेते हैं, जब ऑब्जर्व नहीं करते तो दे आर अ वेव ऑफ एनर्जी. That when you look at them, they take a form. When you don't observe them, the particles are in the wave form as energy. Okay, and the scientists who did that, they got Nobel Prize in 2022. जिन साइंटिस्ट ने ये पता किया उनको नोबेल प्राइज मिला 2022 में. So मैं आज आपको क्वांटम की एक थ्योरी देना चाहता हूँ जो है क्वांटम एंटेंगलमेंट. I want to give you a second theory of quantum today, that is quantum entanglement. और क्वांटम एंटेंगलमेंट ये कहती है, द क्वांटम एंटेंगलमेंट सेज दैट इफ देयर आर टू टाइनी पार्टिकल्स, से इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, वो कहती है अगर दो छोटे पार्टिकल्स हैं एंड इफ दे बिकम एंटेंगल्ड, और अगर वो एक दूसरे से जुड़ गए, एंड देन बिकॉज आप जानते हैं ये पूरा यूनिवर्स जीवित है क्योंकि परमेश्वर के वचन से बोला गया है. The entire universe is alive आप देखा सांस जब लेते हैं तो क्या होता है? हाँ, डेड बॉडी क्या होती है? उसमें कुछ कंपन हिलता नहीं है, जो जीवित हिल रहा है. जब साइंटिस्ट नीचे गए सॉलिड के तो देखा रहे तो सॉलिड नहीं है, ये तो वाइब्रेट कर रहा है. When the scientists check the matter Everything. at its depth, it is vibrating. Vibrating. सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है. Can you put what Nikola Tesla said? It's vibrating. Everything around you is vibrating. आपके आसपास जो कुछ भी है वो एक तरंगों में वाइब्रेट कर रहा है. Okay, आप देखेंगे. All right, where is that? Okay, anyway. So जब एंटेंगलमेंट हो जाता है, जब दो पार्टिकल्स आपस में एंटेंगल होते हैं, एंटेंगलमेंट हो जाता है और फिर वो दूर चले जाते हैं, इवन बहुत दूर, जितना दूर आप सोच सकते हैं. तो जो इस पार्टिकल के साथ होता है एग्जैक्टली वही उस पार्टिकल के साथ भी होता है. When two particles get entangled and then if they are separated in terms of distance, no matter how far, what happens to one particle also happens to the other particle. इसको बाइबल कहती है वननेस. The Bible calls this oneness. यूनियन. एक होना. ओके, और ये थ्योरी अभी प्रूव होके इनको नोबेल प्राइज मिला है कि इट्स नॉट अ फिनोमेना दैट हैपेंड समवेयर, And this इट्स अ theory, प्रॉपर प्रिंसिपल. this theory has been proven. ये एक सिद्धांत है, एक घटना नहीं है. आप समझ गए? फिर से समझाऊं? Let me explain again. हाँ, जब दो कण एक हो जाते हैं और फिर वो अलग भी हो जाए तो जो एक के साथ होता है वही इंस्टेंटली दूसरे के साथ भी होता है. When two particles are united and if then they are separated in distance, what happens to one particle happens to the other as well. Albert Einstein called it spooky action at a distance. Albert Einstein ने इसको अजीब व्यवहार कहा, एक दूरी पर जो होता है. Because science cannot explain it, why it happens. क्योंकि साइंस समझा नहीं सकती कि ये क्यों हो रहा है. But the word can explain why it happens. लेकिन वचन ये समझा सकता है कि ये क्यों हो रहा है. Okay. So, how does it connect to faith? ये विश्वास से कैसे जुड़ा है? As believers, we are entangled in Christ. विश्वासी होने के नाते हम सब मसीह में जुड़े हुए हैं. Put 1 Corinthians 6:17. पहला कुरिन्थियों 6:17. The Bible says, "He who is joined to the Lord is one spirit with him." बाइबल कहती है जो मसीह से जुड़ गया उसके साथ एक आत्मा हो गया है. Okay? So, इसका मतलब जो प्रभु से जुड़ गया वो एक आत्मा उसके साथ हो गया. He who is joined to the Lord has become one spirit with him. That means whatever happened to Jesus इसका मतलब जो कुछ यीशु के साथ हुआ है didn't just happen for you, it happened to you. सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके साथ भी हुआ है. आप जानते हैं सच्ची मसीहत क्या है? Because this is what I asked the Lord. मैंने कहा प्रभु क्या, what is Christianity? वो कोई धर्म नहीं. मसीहत क्या है? It's not a religion. So this is what God told me. प्रभु ने मुझसे ये कहा. He said the union of God and man is Christianity. परमेश्वर और मनुष्य का एक हो जाना ही मसीहत है. Okay? So, first thing, let's see what happened to Christ और वो कैसे हमारे साथ आज कनेक्टेड है. देखते हैं मसीह के साथ क्या हुआ and how is it connected to us today.
First thing is that you were crucified with Christ. पहली बात यह है कि आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जा चुके हैं। Galatians 2:20. गलातियों 2:20। Paul says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but it is Christ who lives in me. पौलुस ने कहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। Okay? So हमारा जो पुराना मनुष्यत्व था, आप जानते हैं पूरा, जब आप पुराने टाइम में देखेंगे सारे लोग क्या कर रहे हैं? They are trying to find an escape from sin. Our old man, all the people they are trying to, वो पाप से छूटना चाह रहे हैं, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। यही पुराने ऋषियों की भी प्रार्थना थी। All the अस्तो मा old सद्गमय, sages. तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से ज्योति की तरफ ले, हमें मृत्यु से अमृत की तरफ ले जा। और Lead us- यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूं। They were praying, lead us from darkness to light, from death to life. And Jesus said, I am the light, I am life and resurrection. ओके? कर्म करके आप पाप की साइकिल से बाहर नहीं आ सकते। By works, by the virtue of doing works, you cannot come out of the cycle of sins. यीशु मसीह ने बोला सदूसियों से, बोला तुम वो जो धर्म के लोग थे, धार्मिक गुरु थे उस टाइम के, यीशु ने कहा हाय तुम पर, तुम वो हो जो अंदर से तो सड़े हुए हो मगर बाहर से प्याले को साफ करते हो, मगर अंदर से सड़े हुए हो। अरे बाहर से वाइट कपड़े पहनने से साफ नहीं हो जाओगे जब तक अंदर साफ ना किया जाए। Jesus, in the times of his religious leaders, he said, you're like graves inside that are rotten, but on the outside shiny and white. मैं आपको एक बात कहूं, और बाइबल बताती है हमारे अच्छे कर्म कैसे हैं? गंदे फटे पुराने चिथड़े। And the Bible tells us our good works are like filthy rags before God. तो अगर आप एक कप लो जो गंदा है और एक गंदा कपड़ा लो और साफ करो तो साफ हो जाएगा। If you take a cup that is dirty and you take a dirty cloth and try to clean it, will it ever be clean? इसीलिए हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। This is why we needed a savior. क्योंकि अच्छे कर्म, थैंक गॉड, अच्छे कर्म से कोई बचाया नहीं जाता, वरना सब नरक जाते। और मैं आपको बताता हूं क्यों। Thank God that no one is saved by good works, otherwise everybody will go to hell. क्योंकि हम पाप केवल कर्म में नहीं अपने विचारों में भी करते हैं। Because we don't just sin in action, we also sin in our thoughts. यीशु मसीह ने कहा अगर किसी मनुष्य ने किसी पराई स्त्री को देखकर मन में व्यभिचार किया तो उसने मेरी नजर में व्यभिचार कर दिया। Jesus said, if a man looks at a strange woman and commits adultery in his heart, he has committed adultery in my sight. आज आप देखते हो people are filled with bitterness, लोग कड़वाहट से भरे हुए हैं, jealousy, ईर्ष्या से। competition। सो अच्छा काम क्या है? एक गरीब आदमी को 10 रुपए दे देंगे एक दिन में, ये अच्छा काम हुआ, मगर 10 करोड़ पाप कर दिए उस दिन में। So in one day they did one work of charity by giving to the poor, but did millions of sins in their heart. If God weighs your good works and the evil intentions of your heart, your good works will be like filthy rags before him. अगर प्रभु एक तराजू में आपके अच्छे काम और आपके सारे पापों को रख देगा तो वो फटे पुराने चित्रों के समान होंगे वो अच्छे काम। इसीलिए उसने कहा ये खुद उद्धार नहीं कर सकते अपना, मुझे मनुष्य रूप धरना पड़ेगा इनका उद्धार करने के लिए। Because he knew that we are not able to save ourselves, he took a human form to deliver us, to save us. Amen? और जब यीशु मसीह क्रूस में गया तो केवल वो क्रूस में नहीं गया, हमारा पापमय स्वभाव भी उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। And when Jesus went to the cross, he did not go to the cross alone, but our sin nature was crucified with him. मेरे पीछे बोलो, I was crucified with him. मेरे साथ कहो, मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। सो पुराना जो जीवन था, पुराना जो मनुष्यत्व था, वो क्रूस पे चढ़ाया गया। That old man of sin, that old life has been crucified. Second, दूसरा, you died with him. आप उसके साथ मारे गए। Colossians 3:3, for you died and your life is hidden with Christ in God. कोलोसियों 3:3, तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। The old you is dead. जो पुराना मनुष्य है वो Isn't that a good news? क्या ये अच्छी खबर नहीं है? क्योंकि लोग कहते हैं
मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे बचपन में अब्यूज किया गया, People मुझे say- बचपन में प्यार नहीं किया गया। अरे वो पुराना मनुष्य तो मर गया और एक नया मनुष्य तो परमेश्वर ने आपको दिया है। People say, this happened to me, I was molested as a child, I was not loved. That old man is dead, you are a new creation. Okay, Christianity isn't about behavior modification. मसीहत व्यवहार बदलने के बारे में नहीं है। It's about God killing your old man and resurrecting a new man with Christ ये है Jesus. कि परमेश्वर आपके उस पुराने मनुष्य को मारकर एक नए मनुष्य को आपके बीच में से पैदा करता है, उत्पन्न करता है आपके अंदर से। Okay? So you're not fighting your past anymore. तो आप अपने बीते हुए कल से लड़ाई नहीं लड़ रहे हो अब। बोलो, मैं अपने बीते हुए कल से लड़ाई नहीं कर रहा। You have been freed from it by your death. आप आजाद कर दिए गए हो उससे अपनी मृत्यु के द्वारा। So वो जो खैनी खाता था, गुटखा खाता था, सिगरेट पीता था, बीवी को पीटता था, गाली देता था, reckon your old man dead with Christ Jesus. The man who was in addictions, who was an abuser, वो अपने पुराने मनुष्य को मरा हुआ जान लो मसीह में। Okay? It's not willpower. God killed the old man. इच्छा शक्ति से नहीं हो सकता, परमेश्वर ने उस पुराने मनुष्य को मार दिया। वो ऐसा है, पाप एक ऐसा वायरस है। सोचो, Sin is like a अगर मैं आपको virus. सिंपल भाषा में समझाऊं If I tell you in easier words, कि एक व्यक्ति है, उसके अंदर एक वायरस चला गया और वो ठीक नहीं हो सकता, that a virus और वो came inside a वायरस person. उसको अफेक्ट कर रहा है, जैसे रेबीज का आदमी पागलों की तरह बिहेव करने लग And जाता है। that virus is affecting the person like the virus of rabies. So Bible teaches us that sin is an inward personality that makes you do stupid things. बाइबल हमें ये सिखाती है कि पाप एक भीतरी व्यक्तित्व है जो आपसे बेवकूफी भरे काम करवाता है। So now God makes a plan. परमेश्वर ने एक योजना बनाई फिर। God says, I'll come like a man. परमेश्वर ने कहा मैं एक मनुष्य के रूप में आऊंगा, I'll identify with your sinfulness तुम्हारे पाप के स्वभाव के साथ मैं एक हो जाऊंगा and I'll die. और मर जाऊंगा, Kill that old man उस पुराने मनुष्य को मार and दूंगा then I'll resurrect. और फिर जी उठूंगा। When I'll resurrect, जब मैं जी उठता हूँ I'll resurrect with a new man. तो एक नए मनुष्य के साथ जी उठूंगा। इसीलिए बाइबल कहती है दूसरे कुरिन्थियों 5:17 में, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया है। This is why the Bible says, if therefore anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. All things have become new. So that person who was abused is dead and gone. You are a new creation. वो जिसका शोषण हुआ था वो चला गया, मर गया, आप एक नई सृष्टि हो। That person who was betrayed, that person who was raped, that person who was whatever happened, that old man is dead and gone. You are a new creation in Christ वो Jesus. जिसको धोखा दिया गया, जिसका बलात्कार हुआ, कुछ भी बुरा क्यों ना हुआ, वो व्यक्ति मारा जा चुका है। आप एक नई सृष्टि हो मसीह यीशु में। I'm prophetically speaking to a sister. मैं एक बहन से भविष्यवाणी के द्वारा बात कर रहा हूँ इस समय। Whatever they did to you, जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया that's dead and gone. वो मर चुका है, बीत चुका There है। is no stain of sin on your life. आपके जीवन पर पाप का कोई दाग नहीं है। God sees you through the blood of Jesus. परमेश्वर आपको यीशु के लहू के द्वारा देखते You हैं। are holy. You are a brand new creation in Christ Jesus. आप पवित्र हो, आप मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हो। लोग आपको बोलेंगे, अच्छा अब बहुत धर्मी बन रहा है। People बोलो say, वो "Oh," पुराना मनुष्य तो मर गया। if people say, oh, you're trying to be too righteous, say the old man is dead. You are not defined by what people did to you. You are defined what Christ did for you. आपकी पहचान इस बात से नहीं कि लोगों ने आपके साथ क्या किया है, आपकी पहचान इस बात से है जो मसीह ने आपके लिए किया है। बोलो मैं एक नई सृष्टि हूँ। Say I am a new creation. बोलो मैं एक नई सृष्टि हूँ। Say I am a new creation. परमेश्वर की नजर में पवित्र, ग्रहण योग्य। In the sight of God, you're holy and accepted. Okay. So none of you should be fighting with your past. आप में से कोई भी अपने बीते हुए कल से ना लड़ो। You're not that person. आप वो व्यक्ति नहीं हो। That's why Jesus said,
When you believe in me, you get born again. इसीलिए यीशु ने कहा जब तुम मुझ पे विश्वास करते हो तो नया जन्म या ये दोबारा दूसरा जन्म पाते नहीं हो। है, It's ये not a second. आत्मा से जन्म लेना है दोबारा, It's being ये birthed, उद्धार को पाना है. being birthed from the Spirit of God Amen. to receive salvation. मैं शरीर से जन्मा, जो शरीर से जन्मा वो मेरा शारीरिक जन्मदिन है, जब मेरी माता के गर्भ से मैं पैदा हुआ. मगर ऐसे ही जिस दिन मैंने उस परमेश्वर को जाना, यीशु के नाम को जाना, मैं उस परमेश्वर की गर्भ से पैदा हुआ और मैं आत्मा में जन्मा. When I was physically born from my mother's womb, that is my physical birthday. But when I came to know the name of Jesus, I was born from the Spirit of God. Third, you were buried with him. तीसरा, आप उसके साथ गाड़े जा चुके हो. Therefore, we were buried with him through baptism into death. Romans 6:4. रोमी 6 उसका 4, उसकी मृत्यु के बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए. अब कई लोग क्या बोलते हैं, ये बपतिस्मा, ये धर्म बदल गया. अरे Some people say, oh, baptism is to यीशु change मसीह ने भी religion. बपतिस्मा लिया था, तो क्या यीशु मसीह ने भी धर्म बदला अपना? Jesus also took baptism, so did he also change his religion? ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई है, प्रभु ने कहा. It's because of the lack of knowledge that my people are perishing, God said. बैप्टिज्म धर्म बदलना नहीं, धर्म के बंधन से आजाद हो जाना है. Baptism is not to change religion, is to be free, to be set free from the bondage of It religion. shows burial. जैसे आपको गाड़ा जाता है, आपका पुराना, मैं आपको आज समझाता हूँ कि आप आपको समझ में आ जाए. छोटी से I'll tell you so and क्रैश कोर्स. ओके, आपका पुराना मनुष्य Your old man जो पाप में था, who was in sin वो मसीह के साथ गाड़ा गया was buried with Christ. और एक नया मनुष्य, जो पानी से बाहर, एक नया मनुष्य जो मसीह के साथ उठाया गया, वो आप पानी से बाहर आते हैं. When That's you- what baptism means. And when you come out of the water of baptism, you are a new creation, a new person that rises out. Amen. It has nothing to do with religion. इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है. Hallelujah. Okay. So fourth, you were raised with him. चौथी बात, आप उसके साथ उठाए गए. केवल नीचे नहीं हो पानी में, You're not just in the water, पर उठाए गए. but you were also raised. Ephesians 2:5-6. Ephesians Even 2:5 when we were dead in trespasses, God made us alive together with Christ and raised us up together. जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया. Amen. You have been raised आप उठाए गए मसीह के साथ, with Christ. मसीह के You were साथ, seated with him. उसके साथ आप बैठाए गए हो. Ephesians 2:6. इफिसियों And 2:6 raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. मसीह के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया भी है. Right now, इस समय you are seated with Christ in heavenly places. आप स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठे हुए हो. Amen. हमें समझना है मसीह होने का मतलब क्या है. हम ईसाई नहीं, हम किसी धर्म में नहीं. We have to understand what it means to be a believer. We are not in any religion. If you are in a religious Christianity, that is as dead as any other religion. अगर आप धार्मिक ईसाईयत में हो तो वो उतना ही मरा हुआ है जितना और कोई धर्म. Because if you are in a religion, there is bondage. क्योंकि धर्म में बंधन है. यीशु मसीह ने कहा, जिसको पुत्र ने आजाद किया है वो सच में आजाद है. Jesus said, whom the Son has set free is free indeed. Amen. You know, let me teach you a little bit about quantum faith and then we'll pray. मैं आपको Okay. विश्वास के बारे में बताता हूं. मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था? क्या जरूरी है? When you pray, you believe. I told you last time, is it important for you जब to आप believe? प्रार्थना करते हो तो आपको क्या करना है? सबसे पहले यीशु ने क्या कहा? मानना है कि आपके लिए वो हो गया. जब आप, when you pray, you have to first believe that it is done for you. मुझे एक what I read somewhere, मैं उसका अगले हफ्ते में आपको उसका रेफरेंस, प्रॉपर रेफरेंस दूंगा. बट एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, एक कैंसर के बहुत फेमस डॉक्टर हैं इस समय.
There's a और वो very- नास्तिक थे और अब वो प्रभु में विश्वास करते हैं। There's a very famous oncologist. और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, He was an atheist, now he's a believer, and he wrote an article. जैसा आपका विश्वास है परमेश्वर वैसा आपके साथ करता है। As your faith is, so God will do to you. उनको एक कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए जाना था और जब वो हवा में थे मिड एयर, तो एक आगे स्टॉर्म का वो आया कि स्टॉर्म है, तो उनको फ्लाइट जो है रूट करके अलग उसको भेज के एक छोटे से कस्बे में, एक शहर में यूएस में, वहाँ पे उनकी फ्लाइट लैंड हुई। He had to go attend a conference, he had to speak at a conference, but because of a storm, their flight had to land in a small town nearby. और वहाँ पे उन्होंने कार रेंटल से कार ली और उनका जो एरिया था वो वहाँ जाने लगे। He rented a car from a company nearby, a car rental company, and he started to drive towards the area we had to go. और रास्ते में जाके एक जगह उनकी कार खराब हो गई। And on the way, his car stopped working on the road. उन्होंने देखा वहाँ पे एक घर है, He saw there was a house nearby. तो वो उस घर में गए He went to that house कि वो एक कॉल करें, that he would because take वहाँ a पे call कोई नेटवर्क्स नहीं थे। because there was no network there. और जब वो घर के अंदर गए तो वहाँ पे एक स्त्री थी और उनका बेटा था, When he went to that house, there was a woman and her son in that house, और वो बहुत बीमार था। and they was very sick. और इन्होंने अपनी कंडीशन बताई And they shared their condition. और उन औरत ने कहा कि ठीक है, And this woman said, आप अगर यहाँ आए हो तो मैं आपको कुछ खाना दूंगी, आप खाना खा के जाओ। okay, if you've come here, I'll give you something to eat. मगर उन्होंने कहा उससे पहले ये मेरे प्रेयर का टाइम है, मैं प्रार्थना करूंगी। But she said, before that, it's my time to pray. I'll pray first. तो उन्होंने कहा आप मेरे को ज्वाइन करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं मानता। And said, will you pray with me? And he said, I don't believe in prayer. And she began to pray. और वो प्रार्थना करने लग गई. अपने बच्चे के लिए जिसको कैंसर था। She began to pray for her son who had cancer. और वो क्या प्रार्थना कर रही थी? What was her prayer? क्योंकि उसको किसी ने बताया था Because somebody told her, कि एक ही डॉक्टर है जो तेरे बेटे को चंगा कर सकता है। there is only one doctor who can heal your son. और वो प्रार्थना कर रही थी She was praying, कि परमेश्वर, Lord, मेरे पास पैसे नहीं I don't have the money कि मैं उस डॉक्टर तक पहुंच सकूं, that I can go to that doctor. पर तू रास्ता बना But you create कि a way कैसे भी कर that somehow तू मुझे उस डॉक्टर से मिला। make me meet और वो that डॉक्टर doctor. वहां बैठकर उसकी प्रार्थना को सुन रहा था। And that doctor was sitting next to her, hearing her prayer. जीवित परमेश्वर है। He is the living God. Amen. एक जगह एक कन्वेंशन होती और एक परमेश्वर के दास प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे। There was a convention somewhere and a man of God was talking about the और Lord एक आदमी Jesus. भीड़ से खड़ा हुआ और बोला ये झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं होता यीशु मसीह। A man stood up from the crowd and said, hey, this is a lie, there's no Jesus. तो सेब खाने लगे। He started to eat an apple, this man. कह रहा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, He said, I'll ask you a question. ये जो मैं सेब खा रहा हूँ The apple that I'm eating, ये मीठा है, it's sweet. क्या आप बता सकते हो कितना मीठा है? Can you tell me how sweet it is? उसने कहा मुझे कैसे पता जब तक मैंने चखा नहीं। He said, how will I know if I haven't tasted it? उसने कहा हाँ तूने मेरे यीशु को भी नहीं चखा। He said, you तुझे नहीं haven't पता। tasted my Jesus either. बाइबल कहती है चख के देखो कि वो परमेश्वर शहद से भी मीठा है। The Bible says, taste and see that he is sweeter than honey. हालेलुया, आमेन। Every agnostic or atheist, हर when they कोई- came to prove that Jesus is not real, end up surrendering their life to Jesus. हर कोई व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं मानता था और ये साबित करने के लिए आया परमेश्वर नहीं है, उसने यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दिया जब निष्कर्ष निकला तो। एक famous atheist, guys, if you can find it online, उन्होंने बुक लिखी है God is not real, पहली बुक लिखी थी। अब प्रभु में आ गए तो नई बुक लिखी है God is not को काट के God is real। A famous atheist, उन्होंने किताब लिखी थी परमेश्वर ने सचमुच नहीं है। अब जब वो विश्वास करने लगे तो उन्होंने किताब लिखी है परमेश्वर सचमुच नहीं, काट दिया और लिख दिया परमेश्वर सचमुच है। Amen. मेरा यीशु जीवित है, वो जिंदा है। My Jesus is alive, he is living. मृत्यु उसको रोक ना सकी कब्र में, Death could not hold him in the grave क्योंकि वो जीवन और पुनरुत्थान है। because he is life and resurrection. हालेलुया। Hallelujah. वो मर नहीं सकता था। बाइबल कहती है वो इसीलिए आया कि मृत्यु के द्वारा उसको हरा दे जिसके पास मृत्यु की सामर्थ्य है।
He could not have died. The Bible says he came so that through death he would defeat the one who has the power over death. अगर आप धर्म में हो, अगर आप ईसाइयत में भी हो, तो मैं आज आपको बुला रहा हूँ, यीशु को चख के देखो, रीति रिवाजों से, मरे हुए रीति रिवाजों से बाहर आ जाओ और उस सच्चे परमेश्वर को चख के देखो कि वो शहद से भी मीठा है. If you are even in religious Christianity, I'm calling you out of traditions and customs, and I'm telling you, taste and see that Jesus is sweeter than honey. Amen. Hallelujah. So, मैंने आपको परमेश्वर के वचन के बारे में बताया था कि वो कैसे दो धारी तलवार है. याद है आपको? Remember, I taught you how the word of God is a two-edged sword. See, the beautiful thing about God is, बाइबल की खूबसूरत बात from है, the beginning, He wants to do partnership with man. परमेश्वर की खूबसूरत बात यह है कि वो शुरुआत से मनुष्य के साथ मिलकर काम करना चाहता है. और परमेश्वर चाहता है And God wants कि आप अब उसके प्रतिनिधि बनकर काम करो. that you now would be His representatives. And So, a spiritual principle is that God will not do anything on this earth without partnering with man. तो एक आत्मिक सिद्धांत ये है कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर कुछ नहीं करेगा बिना एक मनुष्य के साथ सहभागी हुए. आप देखो, क्योंकि एक जनरल थिंकिंग, एक बात क्या है, लोग क्या कहते हैं, अगर परमेश्वर होता तो ये पृथ्वी ऐसी क्यों है, इतना बुरा क्यों है? Because the common question people say is, why is the earth so wretched, in such a bad place if God exists? इतना खराब है, बच्चों ये हो रहा है, इतना बुरा है. अगर परमेश्वर होता तो पृथ्वी इतनी बुरी क्यों है? तो हाँ, परमेश्वर नहीं है. If God existed, why would earth be in this condition? So that means there is no God. और कई लोग कहते हैं अगर वो है तो वो बुरा है. And some people say if God exists, He must be very bad. और कई लोग कहते हैं कि वो नहीं है. And some say He doesn't exist. अच्छा ठीक है, Okay. for argument's sake, वो नहीं है. He doesn't exist. अब पृथ्वी ऐसी क्यों है? अब कौन जिम्मेदार है? Now why is the earth like this? Who is responsible for the earth? हटा दो परमेश्वर को. Remove God from the scene. Now who is responsible for the things on this earth? अब कौन जिम्मेदार है पृथ्वी पे जो हो रहा है उसके लिए? Earth is in a mess not because of God. Earth is in a mess because of man misusing the free will that God gave them. पृथ्वी इस गड़बड़ाई हुई दशा में इसलिए नहीं है कि परमेश्वर नहीं है, लेकिन इसलिए कि मनुष्य ने अपनी स्वेच्छा का गलत इस्तेमाल किया है. आप सोचते हो, कई लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर है तो वो रोकता. उसने जब देखा कि एक व्यक्ति रेप कर रहा था उसको क्यों नहीं रोका? जब एक चाकू मार रहा था उसको तो क्यों नहीं रोका? Some say if God exists, why didn't He rape a man who was trying? Why did He stop a man who was trying to rape? Why didn't He stop a man who was trying to murder? That's a very good question. अच्छा सवाल है. But you need to understand the word. पर आपको वचन समझना है. God works with the ethics of love. परमेश्वर प्रेम के द्वारा काम करता है. And the highest ethics of love is freedom. और सबसे ऊंचा जो उसका स्तर है वो आजादी है. प्रेम का सबसे ऊंचा स्तर आजादी है. ओके, अगर परमेश्वर किसी को चाकू मार रहा है, परमेश्वर आके उसको रोक दे, कोई रेप कर रहा है उसको रोक दे, तो केवल वही नहीं, परमेश्वर को सबको कंट्रोल करना पड़ेगा एक कठपुतली की तरह. आप चल रहे हो, आपका पांव पीछे हो जाए, आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी. सो गॉड विल नॉट कंट्रोल 2 or 3 people. He will have to control 7 billion people, and you will no longer be human beings but puppets of God. If God has to stop one who is trying to murder or trying to rape, then God has to stop all the 7 billion people on the earth. फिर आप केवल कठपुतली रहेंगे. And God will no longer be a loving father. और परमेश्वर एक प्रेमी पिता नहीं होगा फिर. Are you with me? मेरे साथ हो. वो आपसे कभी भी आपकी स्व इच्छा नहीं लेता. He will never take away your free will from you. उसका वचन कहता है, देख मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु को रखा है, जीवन को चुन His कि word तू और says, तेरी जनरेशन जी सके. His word says, I have kept life and death before you. Choose life so you and your generations will live. एक सिंपल सी मैं आपको समझाता हूं कि आप इस बात को समझो. बाइबल बताती है, पुट Psalm 115 verses 16, the heaven, even the heaven belongs to God, but earth he has given to children of men. परमेश्वर का वचन कह रहा है, स्वर्ग तो यहोवा का है पर पृथ्वी उसने मनुष्य के पुत्रों को दी है.
अब सुनो इस बात को, यानी पृथ्वी, when God gave the earth to you, He came out of the equation. He इसका- is no longer controlling the earth. इसका मतलब जब उसने आपको पृथ्वी दी तो वो उस इक्वेशन से बाहर आ गया, अब वो पृथ्वी पर कंट्रोल नहीं कर रहा। That's why we pray. इसलिए हम प्रार्थना करते Prayer is the legal invitation for God to move on our behalf. हैं। प्रार्थना एक कानूनी तरीका है, एक कानूनी इनविटेशन है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। Prayer is not a religious routine. प्रार्थना एक धार्मिक रीति It's रिवाज a नहीं, legal invitation. ये एक कानूनी इनविटेशन है